Hello, good afternoon, everyone. So, once again, you all are welcome in my class. So, last time we completed the chapter 8, the haunted fear, and I have given you the different exercises relating to that chapter, and I hope you have done it, and please try to submit it soon. Now today we are going to learn about the comparison of adjective, the grammar portion of that chapter, the comparison of adjective. First of all, you must know about what is an adjective, definition of an adjective, and its different kinds. Have a revision. You just try to take help from the previous videos that I have already uploaded. You just see that video, revise it, what is an adjective, what are the different kinds of adjective. Then only you can toss this comparison of adjective का comparison sentence में. Now see on the screen. An adjective can have 3 degrees of comparison. Adjective का degree of comparison 3 forms में होता है. The simple form of adjective is called the positive degree. The first form, the basic form of adjective, जो हम लोगों को उसको positive degree कह सकते हैं. When we compare two people or things, we use the comparative form of adjective. हम लोग अगर एक चीज़ से अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक चीज़ से दूसरे चीज़ अथवा one animal to another animal हम लोग compare करना पड़ रहा है, तो हम लोगों को comparative form यूज़ करना है. adjective का comparative form. Lots of comparative adjectives end in er. comparative जो formation word होता है वो word last में er से end होता है. many of, lots of, not all but lots of adjective comparative forms ends in er. when we compare 3 or more people or things, हम लोग जब 2 से अथवा उससे ज़्यादा चीज़ से हम लोग कंपेयर करते हैं, वी यूज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव. लॉट्स ऑफ सुपरलेटिव्स एंड इन est. हम लोग जब कोई पार्टिकुलर थिंग्स को पूरा फुल 2 से अथवा मोर देन 2 नंबर से कंपेयर करना हम लोग करने जा रहा है, तो हम लोग उस टाइम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, राम इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास. हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकुलर राम को पूरा क्लास से कंपेयर कर रहा है, एक ग्रुप से कंपेयर कर रहा है. मोर देन 2, मोर देन 3, मोर देन 4, तो वहाँ पे मे बी 30 स्टूडेंट हो सकता है, 40 हो सकता है, 20 हो सकता है, लेकिन दैट शुड बी मोर देन 2 और 3. अगर ऐसे हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो हम लोगों को सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करना पड़ता है. सो सुपरलेटिव प्रायः est से एंड होता है. with adjective that ends in e. now let us see the rules अथवा how it is formed. with adjective that ends in e vowel letter e, we just add r to form the comparative and st to form the superlative. अगर adjective vowel letter e से end हो रहा है तो हम लोग comparative form करने में er लगाना है, सिर्फ उसमें आर एडिशन करना है और एस टी सुपरलेटिव में. सो हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं. पॉजिटिव लार्ज, लास्ट में ई है. लार्जर, आर ऐड करके हम लोग लार्जर बनाया और एस टी लगा के हम लोग लार्जेस्ट बनाया. ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट. सेफ, सेफर, सेफेस्ट. नाउ रूल नंबर सेकेंड हम लोग देखेंगे. With adjective ending with a consonant and having a single vowel before the consonant, we double the last letter before adding er to form the comparative and est to form the superlative. अब जब पॉजिटिव डिग्री में अथवा एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव में लास्ट में वॉवेल हो, पॉजिटिव एडजेक्टिव का वर्ड का लास्ट लेटर कंसोनेंट हो और उसके आगे सिंगल वॉवेल हो, तो उस टाइम हम लोगों को
जब कंपैरेटिव में फॉर्म होता है तो हम लोग वो लास्ट लेटर को डबल करेंगे और उस पर हम लोग क्या करेंगे, ER एडिशन करके हम लोग उसको कंपैरेटिव फॉर्म बनाएंगे। और सुपरलेटिव में हम लोगों को EST लगाना है। फॉर एग्जांपल बिग, BIG, बिग में लास्ट लेटर G कंसोनेंट है और उसके आगे I वॉवेल लेटर, सिंगल वॉवेल लेटर है, तो हम लोग बिगर में लास्ट लेटर को डबल किया है और ER एडिशन किया है, बिगर एंड बिगेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, रेड, रेडर, reddest. Now let us move to another rule. There are few adjectives whose comparative and superlative forms are with adjective ending in Y, we change Y to I and add ER to form comparative and EST to form the superlative. Now जब adjective के लास्ट में Y हो, एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में Y लेटर हो, तो उस पर हम लोग Y को हटा के IER लगाएंगे, Y को हटा कर I लगाएंगे और उस पर ER हम लोग एडिशन करेंगे कंपैरेटिव बनाने में। और सुपरलेटिव में EST, I हटा के EST, Y हटा के IEST हम लोग बनाना है। फॉर एग्जांपल बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, dirty, dirtier, dirtiest, heavy, heavier, heaviest. Now let us move to another point. With adjectives of 2 or more syllables or sound, we use more to form their comparative and most to make their superlative form. जब syllables, for example जब हम लोग pronounce करते हैं तो उसमें अगर adjectives जब हम लोग pronounce करने के टाइम में जो सिलेबल्स मोर देन 2 आता है तो हम लोग उस टाइम क्या करेंगे, मोर यूज़ करेंगे कंपैरेटिव फॉर्म में और मोस्ट सुपरलेटिव फॉर्म में। फॉर एग्जांपल एक्टिव, यहाँ पे एक्टिव 2 सिलेबल्स है प्रोनाउंस करते समय, चार्मिंग, ब्यूटीफुल यहाँ 3 सिलेबल्स है, हैंडसम 2 सिलेबल्स है। अगर 2 सिलेबल्स अथवा 3 सिलेबल्स ऐसा है, मोर देन 1 सिलेबल्स प्रोनाउंसिएशन करते समय, फॉर एग्जांपल बिजी में 1 सिलेबल्स है, ऐसे करके 1 सिलेबल्स में हम लोग ने क्या करना है ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जब मोर देन 2 सिलेबल्स हो प्रोनाउंस करते समय तो उस टाइम पे हम लोग को कंपैरेटिव में मोर लगाना है और सुपरलेटिव में मोस्ट। फॉर एग्जांपल एक्टिव 2 सिलेबल्स है, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। चार्मिंग 2 सिलेबल्स है, मोर चार्मिंग, मोस्ट चार्मिंग। ब्यूटीफुल यहाँ 3 सिलेबल्स है, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो आई थिंक you have understood it. You may not get confused. Now next, there are few adjectives whose comparative and superlative forms are irregular. Irregular मतलब they don't have the certain rule. They have the total change in their spellings. Now let us see what are they. Positive, good, better, best. Good, positive, comparative, better, superlative, best. यहाँ पे टोटली स्पेलिंग चेंज है. लिटल, लेस, लिस्ट. टोटल प्रोनाउंसिएशन भी चेंज है. फार, फार्दर, फार्देस्ट. ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. लेट, लेटर, लेटेस्ट. मच, मैनी अथवा मोर, मोस्ट. ये आप लोग को पढ़ना है और इसको ध्यान में रखना है. इरेगुलर degree of adjectives. Now let us move to another part. Now this is also very much important dear student. Help वहाँ पे देखिए. We often use then after the comparative degree. हम लोग सेंटेंस में जब किसी चीज़ से कंपेयर करेंगे तो हम लोग then यूज़ करते हैं वो सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल राम इज़ टॉलर देन हरी. टॉलर कंपेरेटिव फॉर्म हम लोग देन यूज़ किया है. TH एंड देन हरी. राम हरी से लंबा है. हम लोग देन हम लोग यूज़ करेंगे सेंटेंस बनाते समय कंपैरेटिव फॉर्म में.
द इज़ यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज। द यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सुपरलेटिव डिग्री में, ये आप लोगों को बहुत तरीके से ध्यान में रखना है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट हैंडसम बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके हम लोग एडजेक्टिव के जो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री में है तो हम लोग आगे द यूज़ करना है। ये देखिए आप, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। नॉइजी, गुड, होली, वेट, ग्रेट। मुंबई इज़ देन लगाया, ये कंपैरेटिव फॉर्म में ही होगा, THN देन लगाया है। मुंबई को कोलकाता से कंपेयर कर रहा है। मुंबई इज़ नॉइजियर देन कोलकाता। नॉइजियर, नॉइजी का वाई लास्ट में है तो वाई हटाना है, आई वाई के बदले में आई और ER लगाना है। हम लोग रूल्स में पढ़े हैं। मैन कैन बी डैश कुक्स देन मैं वुमेन। गुड, अब देन है, ये कंपेयर ही कर रहा है, 2 पीपल है यहाँ, मोर देन 2 नहीं है। सो गुड, बेटर, मैन कैन बी बेटर कुक्स देन वुमेन। In this way you can do this very easily. Now let us move to another part. These are the out of book exercises that you have to do. Give the comparative and superlative degree of the following adjectives: healthy, healthier, healthiest; quiet, quieter, quietest; tight, tighter, tightest; regular, regular, regular; मोर रेगुलर, मोस्ट रेगुलर। आप लोगों को सिलेबल्स को ध्यान करना है। प्रोनाउंसिएशन जो हम लोग स्ट्रेस आता है, कितने बार स्ट्रेस आता है वो याद रखना है, उसी हिसाब से आप लोगों को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हेल्दी एक ही आया है, सो हेल्दियर हेल्दीएस्ट होगा। क्वाइट एक आया है सिलेबल्स, तो क्वाइटर क्वाइटेस्ट। टाइट एक आया है, लेकिन रेगुलर, रेगुलर के 3 सिलेबल्स आया है, रेगुलर, तो मोर रेगुलर, मोस्ट रेगुलर। ऐसे करके आप लोग ये भी बना सकते हैं। सो बी केयरफुल। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। ओके, दिस आर अप टू 15, द एक्सरसाइज इज अप टू 15। नाउ दूसरा देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन डिग्री यूज़ करना है। विच ऑफ द 2 शर्ट इज एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव यहाँ पे 3 सिलेबल्स है, तो हम लोगों को कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना है, मोर एट्रैक्टिव। 2 शर्ट्स कहा है, 2 शर्ट में कंपेयर कर रहा है, तो हम लोग कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना है। इस तरह से आप लोगों को सेंटेंस का सेंस समझना चाहिए। आई रियली गॉट अ डैश पॉइंट देन माई फ्रेंड। मेरे फ्रेंड से मुझसे ज़्यादा, तो यहाँ पे 2 ही है। आई रियली गॉट अ बेटर पॉइंट देन माई फ्रेंड। THN देन देख, अगर आप लोगों को देन दिखाई देता है, ये तो कंपैरेटिव फॉर्म आप लोगों को मालूम ही पड़ना चाहिए। सो गुड का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगा? बेटर। नो वन रियली नोज वेदर ही कैन रिसीव द डैश अवार्ड ऑफ गैलेंट्री। हाई, नो वन रियली नोज वेदर ही कैन रिसीव द दैट मीन्स द आर्टिकल यूज़ करना है हम लोगों को, किसके साथ? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। द हाईएस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ गैलेंट्री। दे से मिस्टर दास इज़ द डैश मैन ऑफ दिस विलेज। द यूज़ किया है, आप लोग देखिए डैश के आगे। सो द हम लोग जब देखेंगे तो हम लोगों को सुपरलेटिव फॉर्म यूज़ करना है। रिच का क्या होगा? रिचेस्ट, the richest man of this village. In this way, dear student, you can do it very easily. I have explained it in very easy language, in a very simple language, so you can understand it. You can do all these exercises. Now let us move to another part. This is from your book, that is writing skills. Now you have to make up a story. The guided words are given in the box. You have to prepare a short story.
Writing of a story is easy if you try. Let's try writing a story with the help of the outlines given below. Outlines दिया हुआ है. Two friends buy parrots. One parrot in the habit of cursing and swearing. Cursing का मतलब श्राप देना. Swearing अथवा कसम. Swearing का मतलब होता है प्रॉमिस लेना. Other recites words from गीता. दूसरा एक दो दोस्त ने, मैं हिंदी में कह देता हूँ ये कथा. दो दोस्त था जिसने 2 पैरोट्स ख़रीदा. एक एक पैरोट्स. और एक पैरोट जो दोस्त ने ख़रीदा था वो दूसरे को सरापने और जो प्रॉमिस लेने में माहिर था. और दूसरा पैरोट क्या था, वो गीता का वर्ड्स रिसाइट करता था, यादें करता था और वो बोलता था वर्ड्स. The first friend worried decides to move his parrot to the other cage. अब यहाँ पे जो फ्रेंड का पैरोट दूसरे को गाली देता था, बैड वर्ड्स, इल वर्ड्स बोलते थे, वो फ्रेंड बहुत वरीड हुआ और उसने ये सोच लिया कि इस पैरोट को मैं वो अच्छा वाला पैरोट के साथ मैं क्या करूँगा, उसके केज में डाल दूँगा. होप इट विल लेसन सम नाइस वर्ड. उसने ये क्यों रखा, उसके साथ रखने की क्यों सोच लिया, क्योंकि अगर अच्छे इंसान के साथ बुरा इंसान रहेगा तो शायद वो अच्छा बातें सीखेगा, अच्छा बन जाएगा. यही सोच के कारण उसने भी उसका बुरा पैरोट था वो अच्छे पैरोट के साथ रहने से अच्छा होगा, ये सोच के उसने रखने की कोशिश किया था. बट द अदर पैरोट पिक्स बैड वर्ड्स. यहाँ पर तो क्या हुआ, वो अच्छा बनने के बदले में जो पैरोट अच्छा बोलते थे, गीता का वर्ड्स बोलते थे, गीता का जो अच्छा वर्ड्स बोलते थे, वही पैरोट्स थोड़े दिन बाद में क्या होने लग गया, बैड वर्ड्स बोलने लग गया, जो फर्स्ट फ्रेंड का पैरोट जैसा. सो ये एक स्टोरी है, छोटा सा आप लोग बना सकते हैं इजीली. Use all the hints and maximum words limitation is 100 words. Give an appropriate title to the story and a suitable moral. एक अच्छा सा टाइटल दीजिए और इसका मोरल आप लोग नीचे पे मोरल भी दे सकते हैं. If you try it, if you are not able, then just I will give you in the next classes. So dear students, this much for today. In our next classes we will be starting our new chapter. Till then, dear student, you have to do all the works that I have given to you till now, because you have to be updated regularly so that you may not forget what you have learned. So let us stop here. Have a nice time. Thank you for listening. Bye bye.